Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Welcome in the English class. Today the topic I am going to start is tense. You know what is a tense? Tense is actually a state of verb or time of action. It means the time at which any action takes place. किसी भी काम के करने के वक्त को ज़माना कहते हैं, मतलब टेंस कहते हैं. On this basis, tense is basically categorized into three types. First one is present, second is past, and third one is future. Firstly, I will explain you about its first type, which is present tense. If I define it, then present tense deals with the current time of action, means the action which is taking place in the present time. मौजूदा वक्त में किया गया काम क्या कहलाता है? फ़ेल हाल, या उसको हम कहते हैं मौजूदा ज़माना. फ़ेल कहते हैं काम को, हाल कहते हैं कि मौजूदा वक्त में, यानी कि मौजूदा वक्त में जो काम किया जा रहा हो या किया गया हो वो किससे डील करेगा, वो किससे एक्चुअली लिंक करेगा? मौजूदा ज़माना से. और in English we can say that it deals with present tense. To memorize the important terminologies or things for a very long time, we sometimes use some notations or some short forms. Sometimes we call them as formula. For present tense, I will give you a formula which basically composed of three components. First one is subject, second is verb, and third one is object. Subject is the person who is doing any action. Verb is basically action, and object is anything on which the subject will do work, will do action. If I talk about its recognition, then the present tense indicates the present time. मतलब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान जो है वो मौजूदा वक्त में किया गया काम. हम किस तरह पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है या फ़ेल हाल है? तो इसकी पहचान क्या होती है कि इसके इनके जुमलों के आखिर में ता है, ती है या ते हैं आते हैं. जब भी किसी भी जुमले के आखिर में ये वाले कोई भी या ये या ये या ये आ जाए तो हमें मालूम हो जाता है ये प्रेजेंट टेंस से डील कर रहे हैं, मतलब ये फ़ेल हाल से डील कर रहे हैं, मौजूदा ज़माने की बात कर रहे हैं. Now it's time I will give some examples. I hope you will better understand present tense through its examples. First example is I write work. मैं काम लिखता हूँ. Here I is subject, write is verb, and work is object. Look at its second example. Hamza अंगूर पसंद करता है. Hamza likes grapes. Here Hamza is subject, likes is verb, which is action actually, and grapes is the object. Okay. Now here I will explain you its second
second type of word tense, which is past tense. In Urdu, we can say that guzra hua zamana. Past tense basically deals with the 4 times action. Means it deals with that action which is already done in the past time, in the 4 time. मतलब गुजरे हुए वक्त में किया गया काम, यानी कि ऐसा काम जो गुजरे वक्त में किया गया था, क्या कहलाता है? फेल माजी कहलाता है। फेल से मुराद काम, माजी से मुराद गुजरे हुए वक्त में जो किया जाए, यानी कि गुजरे हुए वक्त में जो काम किया गया है वो किससे डील करेगा? पास्ट टेंस से, या हम इसे कहेंगे गुजरा हुआ ज़माना। ओके, इट्स फार्मूला आल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 components: subject plus verb plus object. If I talk about its recognition or पहचान, so the recognition of the past tenses indicates the past time or for time action, means any action which already have done. In Urdu, इनकी पहचान क्या होती है? यानी कि इन जुमलों के आखिर में क्या आता है? था, थी, थे, या अलिफ आ जाता है, या छोटी ही आ जाती है, या बड़ी ही आ जाती है। मसलन कि कोई काम किया, या की, या किए, इस तरह के कोई भी लफ्ज़ आखिर में आ जाते हैं जिन जुमलों के, वहाँ से हमें क्लू मिल जाता है कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। I hope you will better understand the past tense through its example. First example is Ali ने सबक पढ़ा. Ali read the lesson. Here Ali is subject, read is the verb, the lesson is the object. मैंने सांप देखा. I saw a snake. Here I is subject, saw is verb, a snake is object. Now here I will explain you its third type, which is future tense. If I define it, then future tense deals with the upcoming time of action, means any action which will be taken place, which will take place in future. यानी कि ऐसा काम जो आने वाले वक्त में, यानी कि जो अभी वक्त आया नहीं है, अभी आना है, उसमें किया जाएगा, वो किससे डील करेगा? फ्यूचर टेंस से, या हम उसको क्या कहेंगे? फेल मुस्तकबिल। फेल मतलब काम, और मुस्तकबिल मतलब आने वाले ज़माने में, यानी कि ऐसा काम जो आने वाले ज़माने में किया जाएगा, उसको हम किस में देखेंगे? फ्यूचर टेंस में। इसका फार्मूला देखें, वो भी ऐसे ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने प्रेजेंट में भी यही फार्मूला पढ़ा, पास्ट में भी यही फार्मूला पढ़ा, और फ्यूचर में भी यही फार्मूला पढ़ा, लेकिन ऐसी बात नहीं। मेन जो बॉडी है फार्मूले की वो सेम ऐसे ही है, लेकिन जो इसमें डिफरेंस है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी कि इनमें डिफरेंस कहाँ आता है। If I talk about the recognition of the future tense, then the future tense indicates the upcoming time of action, means it deals with the work or the action which will take place in future. मतलब ऐसे जुमले जिनके आखिर में गा, गी या गी आएंगे, तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कौन से सेंटेंसेस है, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। If I talk about its examples, then here is some examples which will help you to understand the concept of future tense more clearly. मैं बाजार जाऊंगा. I shall go to market. Here I is subject,
Shall is helping verb. Go is verb and to market is object. Here is some addition which is helping verb. आयशा खाना पकाएगी. Aisha will cook meal. Here Aisha is subject, will is also helping verb, cook is verb and meal is object. I already mentioned that I will explain you the difference among present, past, future and future tense, which will better understand, which will help you in better understanding. So here is some table. I hope you can understand it. Firstly, the point which I am going to discuss is recognition. Recognition of present tense, past tense and future tense. You can see here the main difference. In Urdu, present tense की पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं. मतलब ऐसे जुमले जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं आएंगे, वहाँ से अंडरस्टूड है कि वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस होगा. अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है? इनकी जुमलों के आखिर में आता है थी, था, थे या अलीफ छोटी ये या बड़ी ये. तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन से टेंस की बात कर रहे हैं? पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं. थर्ड, ऐसे जुमले जिनके आखिर में गा, गी, गे आएगा तो वहाँ से भी हमें पता चलेगा कि ये कौन से जुमले हैं, ये कौन से टेंस की बात करें, फ्यूचर टेंस की बात करें. सेकंड, जो मैंने आपको पीछे बताया कि जो फार्मूला है सब में सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? वो यहाँ से समझने की चीज़ है कि ये डिफरेंस क्या आता है. तो आप देख सकते हैं यहाँ कि प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. मेन जो इसकी बॉडी है फार्मूले की सेम वही है, यानी कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तीनों टेंसेस में, मतलब प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी. लेकिन यहाँ डिफरेंस कहाँ आता है? इनकी फॉर्म्स में. आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो वर्ब होती है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉरी 4 फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है एंड फोर्थ फॉर्म होती है. तो ये जो टेंसेस होते हैं ये मेनली किस किस फॉर्म से डील कर रहे होते हैं? जो प्रेजेंट टेंस होता है वो होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से डील करता है. ओके. जो पास्ट टेंस होता है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से डील करता है और जो फ्यूचर है वो फर्स्ट फॉर्म से डील करता है. जो इसमें एक एडिशन होती है वो क्या होती है? इनमें हेल्पिंग वर्ब्स की एडिशन होती है. मतलब प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एस एंड यस. पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होती है प्रेजेंट टेंस की, उसमें जो एडिशन होती है हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो कौन सा होता है? एस और यस. या आगे जाके आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में, आप देख सकेंगे कि ये एस और यस का एडिशन कहाँ होता है. ठीक है. इसके अलावा जो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस होता है या नेगेटिव इसकी स्टेटमेंट होती है प्रेजेंट टेंस में, उसमें हमारे पास कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लेते हैं? डू नॉट एंड डज नॉट. ये भी आगे चल के देखेंगे कि डू नॉट कहाँ लगता है और डज नॉट कहाँ लगता है. इसी तरह जो हमारे पास पास्ट टेंस है इसके फार्मूले में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है. इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? इसके पॉजिटिव सेंटेंस में तो, पॉजिटिव स्टेटमेंट में तो कोई मतलब सच हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, जिस तरह कि यहाँ हुआ था या इधर होगा. लेकिन नेगेटिव जो उसके सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट होती है, उसमें क्या हो जाता है? उसमें डिड नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होता है. उसके अलावा जो हमारे पास फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है. और इधर हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस या पॉजिटिव स्टेटमेंट में विल और शैल लगता है, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट एंड शैल नॉट यूज़ होता है. ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि विल कहाँ यूज़ होगा और शैल कहाँ यूज़ होगा. आई होप यू कैन understand these types of tense. Okay, take care.
We'll see you in next videos. Take care and Allah Hafiz.